इसमें डिस्टर्ब नहीं करना बीच में। Good morning. Good morning, friends. Today, I present the topic antepartum hemorrhage, and I'm associate professor in Index Medical College, Indore. देखिए अभी आपने स्टार्ट किया ना, वो रिकॉर्ड हो गया, वो मैंने इसको पॉज कर दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तो जब बस रिज्यूम करना होगा, शेयर करना होगा। अब जब लास्ट होगी ना, तो इसको रिकॉर्डिंग एंड कर देना और एंड मीटिंग कर देना। अब मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ ना, सेकंड शुरू कर देती हूँ इसमें पहले। फिर बस इसका नंबर है ना, हाँ, कोई दिक्कत होगी इसको फोन करना। तेरे को तभी फोन करेगा जब कुछ ज्यादा अटकेगी है। बस अच्छी बात ये है कि पॉज कर सकते हैं हम। हाँ, अब यहाँ पे मैं रिज्यूम कर रही हूँ। ठीक है। So, what is antepartum hemorrhage? It is defined as the bleeding from or into the genital tract after the period of viability. So, what is the viable period? It is 28 weeks of the pregnancy in our country. But as the developed countries, they have other facilities also. So, their period of viability is 24 weeks of the gestation. So that means antepartum hemorrhage is before the first and second stage of the labor is called the antepartum hemorrhage. ठीक है. अब why we are so much worried about it? Because its incidence is also high and it can be prevented. So what is the incidence? About 1/3 cases of the APH, they belong to the placenta previa, and 3% among them are having the hospital deliveries. So placenta previa is a big factor for the antepartum hemorrhage. So what are the causes? The causes are placental bleeding. They are the 70%, and unexplained or indeterminate are 25%, and extra placental causes are 5%. So they are the three variety of the antepartum hemorrhage. So what is the placental bleeding? Placental bleeding means placenta previa होगा या abruptio placenta होगा. So दोनों का जो percentage है वो equal है, that is 35%, 35%. Okay. Then unexplained causes भी होते हैं जिसमें पता ही नहीं चलता that placenta is also at the normal position, blood pressure is also normal, so no abruptio placenta. Then apart from the unexplained or indeterminate, there are extra placental causes also. Extra placental matlab they are not related to the placenta. There may be some bleed in the vagina or cervix, or there may be polyp or malignancy which is causing the bleeding. So they include the local cervical या vaginal lesions. What are those? They are the cervical polyp, CA cervix, as I have told you just now, the varicose veins of the vagina, the local trauma. So they are the extra placental causes. So what is placenta previa? Here you can see that the placenta is in the lower segment. Otherwise, normally what happens, the placenta is either anterior or posterior, but it is usually at the fundus. But if the placenta comes near the external os, where with the contractions or without the contraction, it will separate and will cause the bleeding. So that is called the placenta previa. What is definition of the placenta previa? When the placenta is implanted partially or completely over the lower uterine segment. There are two segments of the uterus, upper segment, lower segment. Lower segment becomes in the delivery and in the pregnancy. So lower uterine segment over and adjacent to the internal os is called the placenta previa. So when placenta is in the lower segment, it is called the placenta previa. Incidence is 0.5 to 1%. It is found mainly in the multiparous women. मतलब कि प्राइमरी में कम होता है. प्राइमरी में कौन सा मेन कॉज होता है एपीएच का? That is the abruptio placenta. And incidence is increased more than 35 years of the age. Elderly primary में placenta previa का incidence जो होता है, that is more. Now comes the etiology. Etiology means what is the reason for this placenta previa, why it is not occurring in all the patients. So the exact cause is not known.
It is we cannot say कि क्यों प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हुआ. There are some cases जहाँ हम कह सकते हैं जैसे प्रीवियस सिजेरियन है तो उसमें नीचे स्कार होता है तो उसमें हम कह सकते हैं कि या देयर वाज अ रीजन कि भी प्लेसेंटा की टेंडेंसी थी वहाँ पे अडेयर होने की तो इसलिए प्लेसेंटा प्रीविया हुआ. But the exact cause of the implantation of the placenta in the lower segment is unknown and the following theories are postulated. कौन कौन सी है ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी है. ड्रॉपिंग डाउन का मतलब क्या है कि भाई प्लेसेंटा था वो ड्रॉप डाउन हो गया. दैट इज द ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी. परसिस्टेंस ऑफ कोरियोनिक एक्टिविटी है जो कि विद द टाइम डिसअपीयर हो जाती है वो परसिस्ट रहा इसलिए प्लेसेंटा वहां पर रहा. डिफेक्टिव डेसिडुआ है. वीक सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा. प्लेसेंटा इतना बड़ा है या तो ट्विंस में भी कई बार हो सकता है या बिग साइज ऑफ द प्लेसेंटा बिग बेबी के साथ एसोसिएट हो सकता है जिसकी वजह से प्लेसेंटा ऊपर के साथ साथ नीचे भी आ रहा है तो उसका कुछ पोर्शन नीचे सो दैट कैन कॉज प्लेसेंटा प्रीविया. देन व्हाट आर द हाई रिस्क फैक्टर्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया. मतलब इसमें वही आएगा इटियोलॉजी ही आएगी भाई क्या कारण क्या है प्लेसेंटा प्रीविया का. तो क्या है मल्टीपैरा. मैंने बताया आपको प्राइमरी में कम होता है क्योंकि कुछ रीजन क्या है मल्टी में जैसे जैसे डिलीवरीज होती है प्लेसेंटा निकलता है फिर कई बार क्या होता है प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन कोई रह गया हमने थोड़ा सा यूट्रस में अंदर हाथ डाल के उसको क्लीन किया प्रोडक्ट्स को निकाला तो कहीं ना कहीं वो जो एंडोमेट्रियम है उसमें एक टेंडेंसी रहती है कि इन्फ्लेमेशन की और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में जो प्लेसेंटा है उसको एडहियर करने की. थोड़ा रॉ एरिया ज्यादा होगा ना मल्टी में प्राइमरी में होगा ही नहीं. प्राइमरी में तो पहली बार है तो एंडोमेट्रियम स्मूथन है तो जो प्लेसेंटा है वो नॉर्मली अपनी पोजीशन पे जाके लग गए. ठीक है. देन मैटरनल एज मोर देन 35 इयर्स 4 इट इज मोर इन द एल्डरली प्राइमरी. ठीक है. देन एशियन वुमेन में ज्यादा होता है. प्रेजेंस ऑफ द यूट्राइन स्कार सिजेरियन सेक्शन मैंने बताया कि स्कार पे टेंडेंसी होगी एडहेयर होने की इसलिए वो नीचे ही हो गया. कई बार क्या होता है प्लेसेंटा नीचे होता है पर जैसे जैसे टाइम बीतता है बेबी ग्रो करता है प्लेसेंटा ऊपर चला जाता है. ठीक है. पर यदि यूट्राइन स्कार का केस है तो क्या होगा नहीं एडहेयर होगा ना वो वहां ऊपर नहीं एसेंड करेगा वो वहीं पे चिपकने की टेंडेंसी है. ठीक है. मायोमेक्टमी हुई है किसी पेशेंट की मतलब कोई भी स्कार है रॉ एरिया है तो उसकी टेंडेंसी होगी कि स्कार की जगह पर हमारा प्लेसेंटा चिपक जाए. दिस इज द रीजन. मायोमेक्टमी है. देन हिस्ट्रोटॉमी बोलते हैं ये हिस्टेक्टमी नहीं हिस्ट्रोटॉमी. हिस्टोटॉमी होता है जैसे कई बार क्या होता है एबॉर्शन नहीं हो पा रहा और हमें बेबी निकालना है मतलब लेट सेकंड या थर्ड टाइम लेट सेकंड ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं तो हमें लिख देना पड़ता है उसको बोलते हैं हिस्टोटॉमी. ठीक है. अब प्रायर क्यूरेटाज है पहले हमने एमटीपी करा एबॉर्शन हो चुका था या उसको एयू भी था एंडोमेट्रियल यूट्राइन ब्लीडिंग है ना एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग तो वहां पे प्रायर क्यूरेटाज से क्या हुआ वही रॉ एरिया बना इन्फ्लेमेशन हुआ तो प्लेसेंटा की टेंडेंसी है वहां पे अटैच होने की. फिर प्रायर प्लेसेंटा प्रीविया पहले भी हिस्ट्री है प्लेसेंटा प्रीविया की तो रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है. बिग प्लेसेंटा सबसेंचुएटेड लोब्स एक्स्ट्रा लोब्स जो होते हैं कभी कभी प्लेसेंटा में दे आर आल्सो having the tendency क्योंकि उनको भी ज्यादा स्पेस चाहिए. then smoking this causes the placental hypertrophy. ठीक है. तो सो बिकॉज क्या होता क्या है कि जो स्मोकिंग कर रही है मदर सपोज उसमें क्या होगा हाइपोक्सिया टू द बेबी होगा उसको कंपनसेट करने के लिए प्लेसेंटल साइज बिग हो जाएगा इसलिए फिर वही टेंडेंसी है उसकी कि वो नीचे सेगमेंट में अटैच हो जाए. अब क्या है टाइप्स और डिग्रीज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया. ठीक है. तो इसका क्या है इसके मेनली 4 टाइप होते हैं. ठीक है. तो 4 में क्या होता है एक होता है लो लाइन दूसरा होता है मार्जिनल तीसरा होता है इनकम्प्लीट या पार्शियल चौथा होता है सेंट्रल या कंप्लीट. तो लो लाइन में क्या होता है कि भी मेजर पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा जो है ना वो तो अपर सेगमेंट में है केवल थोड़ा सा लोअर मार्जिन दैट एंकरोचेस द लोअर सेगमेंट. ठीक है. टाइप 2 मार्जिनल में क्या होता है प्लेसेंटा रीचेस द मार्जिन ऑफ द इंटरनल लॉस बट डज नॉट कवर इट. थोड़ा सा और नीचे होगा पर कवर नहीं करेगा इंटरनल लॉस को. टाइप 3 में इनकम्प्लीट या पार्शियल में क्या होगा प्लेसेंटा कवर्स द इंटरनल लॉस पार्शियली. अब ये इंटरनल लॉस तक आ गया है मतलब और नीचे नीचे हम स्टडी कर रहे हैं इंटरनल लॉस तक आ गया पार्शियली ये कवर करेगा इंटरनल लॉस को पर कब नहीं करेगा जब इंटरनल लॉस पूरी डायलेटेड हो जाएगी. समझ आई मतलब कि प्लेसेंटा का कुछ पार्ट आ रहा है इंटरनल लॉस तक पर पूरा नहीं आ रहा है. और टाइप 4 सेंट्रल या कंप्लीट में क्या होगा प्लेसेंटा कवर्स द इंटरनल लॉस इवन व्हेन इट इज फुल्ली डायलेटेड मतलब पूरा का पूरा प्लेसेंटा ऐसे उठ के इंटरनल लॉस पे पड़ा हुआ है. तो इंटरनल लॉस पूरी डायलेट भी हो गई 10 सेंटीमीटर तो भी
प्लेसेंटा उससे अवे नहीं गए, दैट इज द सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। ये बहुत जरूरी है डायग्नोस करना, क्योंकि हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं जाते हैं। यदि तुम्हारा सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया है, और कई बार इनकम्प्लीट में क्या होता है, ऑटोमेटिकली आराम से बेबी डिलीवर हो जाता है, अदरवाइज वी डोंट हैव द टेंडेंसी, वी शुड नॉट हैव द टेंडेंसी टू डू द परवेजनल एग्जामिनेशन। क्योंकि यदि आपने पीवी की तो आप क्या करोगे, गलती से प्लेसेंटा को सेपरेट कर दोगे फिंगर से, और इट विल कॉज द टॉरेंशियल ब्लीडिंग। You should be very careful. You can see the same thing here. देखो, वन में क्या हुआ, लो लाइन है पर ऑस तक नहीं पहुंच रहा। दूसरे में क्या हुआ, इंटरनल ऑस के पास आ रहा है। तीसरे में क्या हुआ, इंटरनल ऑस को देखो कवर कर रहा है वो, पर जब डायलेट होगी ना सर्विक्स तो वो साइड में सर हो जाएगा। और टाइप 4 में तो क्या है, बिल्कुल पड़ा ही हुआ है, इंटरनल ऑस पूरी डायलेट हो जाएगी तो भी वो वहीं पे रहेगा। ठीक है, अब देखो क्या है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, क्या है इसका। ये क्लिनिकल क्लासिफिकेशन हम क्यों वरीड है, क्योंकि हम तो पेशेंट को अपने डिपार्टमेंट में देखते हैं ना, जब पेशेंट आता है लिवर पेन्स में या फिर ब्लीडिंग करता हुआ आता है, तो हम क्या कहेंगे भी माइनर है या मेजर है। माइनर मतलब होता है कि टाइप 1 एंटीरियर या पोस्टीरियर, और टाइप 2 एंटीरियर। ये होता क्या है, डिलीवर हम कर सकते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से मैनेजमेंट डिसाइड होता है। तो डिलीवर वेजाइनली कर सकते हैं माइनर को, टाइप 1 और टाइप 2 एंटीरियर को हम लोग आराम से डिलीवर कर सकते हैं नॉर्मल वेजाइन डिलीवरी के लिए। टाइप 1 पोस्टीरियर जो होता है ना, वो थोड़ा रिस्की होता है, दैट इज रिस्की। ठीक है, तो उसमें फीटल डिस्ट्रेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब मेजर है, मेजर मतलब कि ये है प्लेसेंटा प्रीविया की वो वैरायटी जो रिस्की है, जिनके लिए हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना है और बहुत केयरफुल रहना है। ठीक है, तो मेजर में टाइप 2 पोस्टीरियर आता है, जिसको बोलते हैं डेंजरस टाइप। क्या बोलते हैं, डेंजरस टाइप। तो इसमें तो हमारे को फीटल डिस्ट्रेस की चांसेस ज्यादा है, ब्लीडिंग की चांसेस ज्यादा है। वी शुड बी वेरी केयरफुल फॉर पीपीएच, एपीएच। अब टाइप 3 जो है एंड 4 एंटीरियर कट थ्रू प्लेसेंटा टू डिलीवर, हैंस नीड टू बी फास्ट एंड एफिशिएंट। मतलब कि टाइप 3 एंड 4 में क्या होगा, हमारे को बेबी को डिलीवरी करानी है, हम कराएंगे सिजेरियन से, पर हमें बहुत ही उसके थ्रू जाना पड़ेगा, प्लेसेंटा के थ्रू जाना पड़ेगा। हम जब निक देंगे तो हमारे को सीधा बेबी नहीं मिलेगा, हमें पहले प्लेसेंटा मिलेगा, हमें कट करना पड़ेगा और फिर उसके थ्रू जाना पड़ेगा टू डिलीवर द बेबी। अब ये देखो, ये आ गया हमारा रिवाइज क्लासिफिकेशन। ये ट्रू प्लेसेंटा प्रीविया या लो लाइन प्लेसेंटा है ना, जो प्लेसेंटा इंटरनल ऑस को कवर करता है ना, इन्होंने कहा भाई वही है ट्रू प्लेसेंटा प्रीविया। बाकी सब ठीक है, थोड़ा हमें केयरफुल रहना है एक एज के लिए, पर दे आर नॉट द ट्रू प्लेसेंटा प्रीविया। सो दिस इज द रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन। एंड लो लाइन प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा लाइज विद इन 2 सेंटीमीटर ऑफ इंटरनल ऑस बट डज नॉट कवर इट। ठीक है, मतलब ट्रू प्लेसेंटा प्रीविया उनकी नजरों में वही है जो कि वाकई में इंटरनल ऑस को कवर कर रहा है, बाकी सब लो लाइन प्लेसेंटा है। ठीक है, अब डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, ये हमने नाम दिया है प्लेसेंटा प्रीविया की टाइप 2 बी वैरायटी को, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई ये पोस्टीरियर की साइड होता है प्लेसेंटा, है ना। तो मेजर प्लेसेंटल थिकनिंग ओवरलाइज सैक्रल प्रोमोटरी डिमिनिश एपी डायमीटर ऑफ इनलेट प्रिवेंट्स एंगेजमेंट। अब देखो खुद तो वहां पर है ही प्लेसेंटा, पर उसकी लोकेशन क्या है, वो है पोस्टीरियर जहाँ पे सैक्रम होता है। तो उसने वो जो सैक्रम की होलो है जो हमारे काम की होती है, जिसमें हेड फिट होता है, उसको वेस्ट कर दिया। तो बेबी की डिलीवरी में दिक्कत आती है, उसके हेड के एंगेजमेंट में, फ्लैक्शन में, हर प्रोसेस में दिक्कत आती है, तो सिजेरियन सेक्शन की रेट बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया। तो मेजर प्लेसेंटल थिकनिंग ओवरलाइज द सैक्रल प्रोमोटरी डिमिनिश डायमीटर ऑफ द इनलेट प्रिवेंट द एंगेजमेंट एंड प्लेसेंटा कंप्रेसेस ड्यूरिंग द वेजाइनल डिलीवरी। अब जब प्लेसेंटा कंप्रेस होगा तो ऑटोमेटिकली फीटल डिस्ट्रेस होगा ना, तो हमारे को तो डिलीवरी होने तक ऐसा होना चाहिए हमारा प्लेसेंटा कॉर्ड कि अनटच रहे, मतलब वो प्रेशर कंप्रेशन ना पड़े, बेबी की जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो अफेक्ट ना। Chance of cord compression and prolapse are very high in type 2B posterior placenta previa। तो cord collapse तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, प्रोलैप्स अपने आप में बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। नाउ कम्स द टाइप 2 posterior placenta previa। ये इसी का डायग्राम दिखा रखा है।
कि भी टाइप 2 पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया का है कि भाई देखो ये पीछे की साइड है, सैक्रम होलो को इसने ऑब्लिटरेट कर दिया है यहाँ पर, तो वो स्पेस सारा हमारा वेस्ट हो गया, जो हमारी कंकेविटी यूज होनी चाहिए थी वो वेस्ट हो गई है। नाउ कम्स द प्लेसेंटल माइग्रेशन। तो प्लेसेंटल माइग्रेशन क्या होता है? अभी मैंने पहले की 2-4 स्लाइड्स में ये बोला था कि कई बार प्लेसेंटा नीचे होता है, पर विद द टाइम जब बेबी ग्रो करता है तो प्लेसेंटा भी ऊपर चला जाता है। सो प्लेसेंटल माइग्रेशन एट 17 वीक्स approximately 10% cases show placenta covering internal loss. Repeat USGS at 37 shows no placenta in 90%. मतलब इतना हाई रेट है प्लेसेंटल माइग्रेशन का कि टर्म पे बहुत कम वाकई में प्लेसेंटा प्रीविया रहते हैं, अदरवाइज सारे नॉर्मल माइग्रेशन हो जाता है। लोअर यूट्राइन सेगमेंट एक्सपेंड्स फ्रॉम 0.5 सेंटीमीटर एट 20 वीक्स टू मोर देन 5 सेंटीमीटर एट टर्म। लोअर सेगमेंट जब एक्सपेंड करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके साथ प्लेसेंटा भी चला जाएगा। तो ये रीजन है प्लेसेंटल माइग्रेशन का, ठीक है। Placental migration due to increase in length of the US, the lower placental edge rotates. The tropotropism, growth of tropoplastic tissue towards the fundus. क्योंकि फंडस की तरफ ग्रोथ करती है तो इसलिए प्लेसेंटा भी वहीं चला जाता है। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगा, आएगी कैसे ये पेशेंट हॉस्पिटल में, क्या सिम्टम्स क्या साइंस प्रेजेंट करेगी? प्लेसेंटा प्रीविया शुड बी सस्पेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस। किस में होगा? vaginal bleeding after 20 weeks of gestation, ठीक है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद हो और फर्स्ट और सेकेंड स्टेज से पहले हो। हाई प्रेजेंटिंग पार्ट ऊपर पड़ा हुआ है, प्रेजेंटिंग पार्ट हेड वगैरह एंगेज ही नहीं हुआ क्योंकि नीचे क्या प्लेसेंटा है। हाई प्रेजेंटिंग पार्ट एंड एब्नॉर्मल लाइक, क्योंकि सारी चीजों को डिस्टर्ब करता है। यदि अगर फ्लेक्शन ऑफ द हेड ठीक से नहीं हुआ ना, एक्सटेंड रहा, तो फिर बेबी अपने बेस्ट पॉसिबल वे में कोशिश करता है अलाइनमेंट की, तो लाइव भी एब्नॉर्मल हो जाएगा, प्रेजेंटेशन भी हाई या एब्नॉर्मल हो जाएगा। पेलनेस और अनप्रोवोक्ड ब्लीडिंग, ये इसकी बहुत खास बात है कि पेलनेस ब्लीडिंग होती है, पता ही नहीं चलता। पेशेंट आएगी, वो कहेगी मैम यस्टरडे नाइट आई वाज स्लीपिंग एंड आई सॉ माय सेल्फ इन द मॉर्निंग इन अ पूल ऑफ ब्लड, ठीक है। डेफिनेट डायग्नोसिस इज अचीव्ड बाय द अल्ट्रासाउंड and every woman with a suspected diagnosis of placenta previa and anomaly scale should have diagnosis confirmed by the TVS. तो TVS सेफ है, जिससे हमें 100% पता चल जाएगा कि भाई प्लेसेंटा नीचे है। Now comes the clinical features of the placenta previa. Symptoms में क्या होगा? विद ब्लीडिंग है, मेन क्या है? ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का कैसे रहेगी? ब्लीडिंग पेनलेस होगी, उसको कोई दर्द नहीं होगा पेशेंट को, जबकि PIH में पेशेंट को पेन होता है, इसमें पेन नहीं होता। Apparently causeless recurrent, कोई कॉज नहीं है मैम, मेरे को तो पता नहीं चला कब ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो देयर वाज नो रीजन एंड इट विल बी रिकरेंट, मतलब एक बार हो गया फिर बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली, माइनर है फिर रिपीट होता है, सो इट इज रिकरेंट। द ब्लीडिंग इज अनएसोसिएटेड with pain unless labor starts simultaneously। कई बार होता है कि लेबर में चली गई है पेशेंट और तब ब्लीडिंग हो रही, तब हो सकता है कि हम 1% कंफ्यूज हो जाए कि यार ये तो पेनफुल है, बट वो असली पेन नहीं होते हैं। फिर प्लेसेंटा प्रीविया की जैसे वो पेन होते हैं लेबर पेन्स, बट बाय चांस वो मर्ज हो गए। In majority of cases, the bleeding occurs before 38 weeks, and earlier bleeding is more likely to occur in major degrees. So, in majority of cases, bleeding occurs before 38 weeks, and earlier bleeding is more likely to occur in the major degrees. Obviously, बात है major में ज़्यादा चांस है और वो जल्दी ब्लीड करेंगे, क्योंकि जो साइलेंट होंगे प्लेसेंटा प्रीविया वो क्या है, लेट तक कुछ नहीं कहेंगे, दे बी साइलेंट। Now comes the signs. तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा तुम्हें? यदि पेशेंट आई है, size of the uterus will correspond to the period of gestation। जितने वीक्स की प्रेगनेंसी, जैसे सपोज 34 है तो 34 वीक्स की gestation साइज मिलेगा यूट्रस का। यूट्रस फील रिलैक्स है, सॉफ्ट है, इलास्टिक है, विदाउट एनी टेंडरनेस, कोई दर्द नहीं है पेशेंट को, पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल है। परसिस्टेंस ऑफ माल प्रेजेंटेशन, बस हमारा दिमाग जो वो होगा ना वर्क करेगा, वो मेनली क्यों करेगा कि माल प्रेजेंटेशन था, अब वो सही नहीं हो रहा है तो हमें लगेगा ना कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कि भाई ये माल प्रेजेंटेशन करेक्ट ही नहीं हो रहा है, वरना विद द एज तो कभी तो ब्रीच है वो किफेलिक में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसवर्स है वो वर्टेक्स है ब्रीच में कन्वर्ट हो जाता है, तो कोई चीज मतलब परमानेंट हिंडर कर रही है, जो रीजन है परसिस्टेंस ऑफ माल प्रेजेंटेशन।
द हेड इज फ्लोटिंग इन कॉन्ट्रास्ट टू द पीओजी, मतलब कि अब हमें लग रहा है यार एंगेजमेंट हो जाना चाहिए था, पर हेड तो एंगेज ही नहीं हुआ, वो फ्लोट कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग व्हिच इज हिंडरिंग इट्स एंगेजमेंट. Then FHS is usually present, but unless there is a major separation of the placenta, but the baby is usually alive. नहीं हुआ was हो गया पानी पी लो. हाँ है यही कह रहे थे, वो रेड कलर की बोतल. आयुष्मान तो बराबर मोबाइल में देखो यार. नहीं नहीं फिर आइस चेन होता है ना, मोबाइल रख दो. तू भी पानी पी के आ जा, है ना. कितनी स्लाइड से टोटल 53. बाप रे. नीचे करना है. हाँ क्या करोगे, पापा के पास तो नहीं जाना. कितना अच्छा ये रिकॉर्डिंग थोड़ी ना चल रही है. मत कर जरा भी छेड़खानी मत कर. अब आप क्या करोगे, अब आप कुछ अच्छी सी ड्राइंग बना लो एक. बेटी शुरू करें. चलिए रिज्यूम कर दे. Now comes the Stalworthy sign. What is that? And vulval inspection. तो ये हम किसके लिए कर रहे हैं, प्लेसेंटा प्रीविया को देखने के लिए कर रहे हैं. Stalworthy sign में क्या होता है, slowing of the fetal heart rate or pressing head down into the pelvis will soon recovers promptly as pressure is released. That means it is suggested of the low line. हमने क्या किया, हेड को प्रेस के नीचे, उसने प्लेसेंटा को प्रेस किया, उससे क्या हुआ, ब्लड सप्लाई कम हुई. तो एफएचएस जो होगी बेबी की वो कम हो जाएगी ना, वो अफेक्ट हो रहा है. ये है स्टालवर्थी से. वल्वल इंस्पेक्शन में क्या होगा, ऑन इंस्पेक्शन ब्राइट रेड कलर. इसमें एक खास बात होती है, एपीएच में क्या होता है, ऑल्टर्ड ब्लड दिखता है. प्लेसेंटा प्रीविया तो सेपरेट होता है ना, तो फ्रेश ब्लीडिंग होती है. Bright red color blood is seen as the bleeding occurs from the separated uteroplacental sinus close to the cervical opening and escapes out immediately. Vaginal examination must not be done outside the OT as it can provoke further separation of the placenta. ये important बात है कि भी हमें ना पीएस करना चाहिए इन केसेस में. पीवी नहीं हमारे को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि प्लेसेंटा सेपरेट होगा ना तो और ब्लीड करता है, तो वी शुड बी केयरफुल. अब क्या है, कंफर्मेशन कैसे करोगे, कि कंफर्मेशन कैसे करोगे, क्लिनिकल चीजें हमने देख ली है ना, और हमने उनको सोनोग्राफी रेडियोलॉजी इन सब चीजों से कोरिलेट कर लिया. पेशेंट की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो कंफर्मेशन डायग्नोसिस पेनलेस रिकरेंट वैजिनल ब्लीडिंग इन द सेकंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी शुड बी टेकन एज प्लेसेंटा प्रीविया अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज. समझ आ गया कि जब तक ना पता चले क्या है ये हमारा प्लेसेंटा प्रीविया. कंफर्मेशन इज डन बाय सोनोग्राफी. क्या क्या सोनोग्राफी है, इमेजिंग स्टडीज है, सोनोग्राफी है, एमआरआई है. ठीक है, तो इसमें हमारा क्या क्या, एमआरआई तो हम नहीं कराते हैं हम, क्योंकि बहुत कॉस्टली भी होता है. हमारी डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड से ही कंफर्म जाती है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हो जाती है. तो मेरी ट्रांस एब्डोमिनल है कि ये सभी रेयरली कराते हैं, अर्ली स्टेजेस में कराना है तो अलग बात है. ट्रांस पेरिनियल भी करा सकते हो, कलर डॉपलर फ्लो स्टडी टू सी द ब्लड फ्लो टू द बेबी. 3D पावर डॉपलर स्टडी है, अगेन बेबी का स्टेटस देखना है आपको कि बेबी वेलबींग है या नहीं. डॉपलर का मेन रोल ही वही होता है, बेबी का फीटल वेलबींग देखना. ठीक है,
अब MRI है for better diagnosis है, but very costly, so we don't usually do it. Placenta previa है, placenta previa accreta है, हाँ ये accreta के रोल में important है MRI, क्योंकि accreta क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है ना वो अंदर मायोमेट्रियम में इन्वेट कर, तो वो क्या है अपने आप में बहुत हाई रिस्क है, बिकॉज क्या होगा कि डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा सेपरेट ही नहीं होगा, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। अब क्या आता है क्लिनिकल बाय इंटरनल एग्जामिनेशन, डबल सेटअप एग्जामिनेशन। क्या होता है डबल सेटअप कि हम ओटी में देखते हैं और ऐसे देखते हैं कि यदि हमें लगा सेक्शन देना पड़ रहा है तो वहीं हम शिफ्ट करा लें, यदि पेशेंट ब्लीड कर रही है तो डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ड्यूरिंग सी सेक्शन। अब हम सी सेक्शन कर रहे हैं तो हमें दिख ही जाएगा प्लेसेंटा नीचे पड़ा हुआ है। एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेसेंटा फॉलोइंग वेजाइनल डिलीवरी, आप एग्जामिन करोगे कि बिग तो नहीं है प्लेसेंटा या सबसेंचुएटेड लोब तो नहीं है, तो ये बताना चाहते हैं। अब प्लेसेंटोग्राफी है, मतलब कि ये डायग्नोस्टिक टूल है हमारा चॉइस का, क्योंकि सिंपल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब करा सकते हैं कि आफ्टर 30 वीक ऑफ द जेस्टेशन, मतलब ऑलमोस्ट 100% ये डायग्नोस कर देता है। पॉजिटिव फॉल्स रिजल्ट में भी ड्यू टू द फुल ब्लैडर या मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शंस है कभी, तो उससे यूट्रस का साइज जो है वो हिंडर कम ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में हो सकता है। रीजन फॉर पुअर इमेजिंग इज इन अ पोस्टीरियरली सिचुएटेड प्लेसेंटा आर, तो क्या है पुअर इमेजिंग in a posteriorly situated placenta, acoustic shadow from fetal presenting part and anteriorly utrovesical angle below which placenta is defined as previa. ये कहना चाहते हैं कि प्लेसेंटा पीछे की साइड है तो क्या होगा, आगे बेबी है ना, तो बेबी प्लेसेंटा को इतने अच्छे से नहीं देख रही, ये मतलब। अब हमारा आता है TVS, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया डायग्नोस, कंप्लीट प्लेसेंटा previa diagnosed in the second trimester persists into the third trimester in 26% of the cases, मतलब कि बहुत कम बचता है, whereas marginal placenta previa with persists in only 3.5%। जितना लेस डिग्री का होगा ना वो उतना ही चांसेस है नॉर्मल होने का। ट्रांसपेरेंट सोनोग्राफी है, इंटरनल विजुअलाइज इन 97 to 100% केसेस। कलर डॉपलर है, diffuse vascular lakes with turbulent flow in the hypoechoic areas near the cervix is consistent with the diagnostic placenta previa। मतलब कि अब नॉर्मली इंटरनल लॉस के पास थोड़ी ना इतनी ब्लड वेसल्स होती हैं, पर यदि प्लेसेंटा है तो ब्लड ही ब्लड होगा, तो वो बताना चाह रहे हैं। 3D डॉपलर इज द बेस्ट, डॉपलर से ब्लड फ्लो पता चल जाएगा। MRI नॉन इन्वेजिव है, विदाउट एनी रिस्क ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन, इट इज बेटर देन USG, ऑफ कोर्स दिस इज बेटर to diagnose the posterior placenta previa, जहाँ पे क्या होगा वो acoustic shadows जो हमें हिंडर कर रही थी वो नहीं करेंगे, तो पोस्टीरियर में या एक्रीटा में या परक्रीटा में MRI ज्यादा इफेक्टिव है। एंड प्लेसेंटा प्रीविया एक्रीटा या परक्रीटा विद ब्लैडर इन्वेजन, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे को क्लियर काफी हद तक अंदाजा लग जाता है कि प्लेसेंटा एक्रीटा है या परक्रीटा है, उस हिसाब से हमारा मैनेजमेंट ही बिल्कुल बदल जाएगा। USG showing central placenta previa, अब ये देखो आप सोनोग्राफी में जो है सेंट्रल दिख रहा है, ये प्लेसेंटा पूरा प्लेसेंटा ही प्लेसेंटा है ये, ठीक है, तो ये सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। क्लिनिकल कंफर्मेशन, डबल सेटअप मैंने बताया ओटी में करते हैं, अंडर एनेस्थीसिया करते हैं, कीपिंग एवरीथिंग रेडी फॉर सी सेक्शन, बस हमें देखना है। Visualization of the placental implantation on the lower uterine segment can be confirmed during C-section. Examination of the placenta following vaginal delivery reveals क्या-क्या हो सकता है यदि normal delivery होगी तो tongue shape, comparatively thin segment of the placental tissue, मतलब कि थोड़ा सा वो बड़ा होगा placenta. Rent on the membranes, abnormal attachment of the cord because the big size placenta can be there, है ना। अच्छा अब क्या है कि भी इन्होंने, हाँ ये क्या हमारा डबल सेटअप। अब क्या है डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन द एब्रप्शी और प्लेसेंटा, ये दोनों का मैनेजमेंट बिल्कुल अलग है, इसलिए हमने इन दोनों को कंपेयर किया है और दोनों ही APH के कारण है, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या आएगा, नेचर ऑफ ब्लीडिंग प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस, causeless, recurrent, and bleeding is always revealed.
हमेशा ब्लीडिंग क्या होती है, वो बाहर आती है। एब्रप्शियो में क्या होगा, एब्रप्शियो में पेनफुल होता है, ऑफन एट्रीब्यूटेड टू द प्रीएक्लेम्पसिया, ट्रॉमा या कंटिन्यूअस ब्लीडिंग। रिवील्ड हो सकती है, कंसील्ड हो सकती है और यूजुअली मिक्स हो सकती है। ठीक है। कैरेक्टर ऑफ ब्लड क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया में ब्राइट रेड होता है और वहां पे कैसा होगा, डार्क रेड होगा, ऑल्टर्ड थोड़ा ब्लैकिश। जनरल कंडीशन एंड एनीमिया विल बी प्रोपोर्शनल टू द जितना ब्लड लॉस हो। जबकि एब्रप्शियो में तो ना पेशेंट को तुम्हें लगेगा बिल्कुल पेल है वो, क्योंकि अंदर इतना ब्लड लॉस हो चुका होता है। फीचर्स ऑफ प्रीएक्लेम्पसिया प्रेजेंट होंगे एब्रप्शियो में। ठीक है। अच्छा, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में तुम्हें क्या मिलेगा भाई, हाइट ऑफ द यूट्रस जैसे नॉर्मल है उतनी होगी। और एब्रप्शियो प्लेसेंटा में क्या होगा, एनलार्ज हो जाएगा, क्योंकि अंदर प्लेसेंटा के पीछे जो है वो ब्लड कलेक्शन है, तो हाइट ऑफ द यूट्रस बढ़ जाएगी। फील ऑफ द यूट्रस जो है वो सॉफ्ट और रिलैक्स रहती है। कहाँ पर, प्लेसेंटा प्रीविया में। जबकि एब्रप्शियो में क्या होता है, पेन आने लगते हैं, टेंस, टेंडर, रिजिड। माल प्रेजेंटेशन होंगे किसमें होंगे, प्लेसेंटा प्रीविया में होंगे। आपने यदि बेसिक समझ लिया ना, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसकी प्लेसेंटा प्रीविया की चीजें देखो, आप खुद पड़ा हुआ है वहाँ पे नीचे, तो माल प्रेजेंटेशन करेगा ना। जबकि एब्रप्शियो में क्या होगा, नॉर्मल प्लेसेंटा की लोकेशन रहती है, बस पीआईएच बीपी इन सब का रिलेशन है, तो इसमें माल प्रेजेंटेशन नहीं होते। एफएचएस यूजुअली प्रेजेंट रहेगी प्लेसेंटा प्रीविया में, उसमें एब्सेंट भी हो सकते हैं क्योंकि बेबी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। प्लेसेंटोग्राफी अब यूएसजी एमआरआई में दिखेगा, लोअर सेगमेंट में उसमें दिखेगा नॉर्मल है। और वेजाइनल एग्जामिनेशन, प्लेसेंटा इज फेल्ट ऑन द लोअर सेगमेंट, नॉट टू बी डन इन अ सस्पेक्टेड केस। जबकि एब्रप्शियो में हम कर सकते हैं, है ना, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन एंड प्लेसेंटा इज नॉट फेल्ट ऑन द लोअर सेगमेंट, ब्लड क्लॉट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द प्लेसेंटा। वो भी सॉफ्ट लगते हैं ना। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी भाई, मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस हैं, फीटल कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो हम पहले मैटरनल को देख लेते हैं। मैटरनल में क्या होंगी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, फिर ड्यूरिंग द लेबर। ठीक है। फिर उसके बाद में भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो मैटरनल में क्या आएगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माल प्रेजेंटेशन हो गए, प्रीमेच्योर लेबर हो गया, ड्यूरिंग लेबर क्या हुआ, कॉर्ड प्रोलैप्स हुआ। ठीक है। कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है क्योंकि क्या हुआ है, कॉर्ड प्रोलैप्स क्यों हो रहा है, क्योंकि एबनॉर्मल लोकेशन ऑफ द umbilical cord on the placenta. Cord collapse हो सकता है, स्लो डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स हो सकता है। ठीक है। इंट्रापार्टम हेमरेज हो सकता है, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ द ऑपरेटिव पीपीएच एंड रिटेन्ड प्लेसेंटा। सारे कॉजेज मोर रहेंगे यदि प्लेसेंटा प्रीविया। पीपीएच क्यों हो सकता है बताओ जरा, इम्परफेक्ट रिट्रैक्शन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, क्योंकि लोअर यूट्राइन सेगमेंट में ही तो होता है वो। अब वो क्या है, बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, रिट्रैक्ट नहीं कर रहा लोअर सेगमेंट, प्लेसेंटा पड़ा हुआ था, तो उसकी टेंडेंसी बहुत सॉफ्ट हो जाता है, लूज हो जाता है, तो वो इतना अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट रिट्रैक्ट नहीं करता जितना अच्छे से उसे करना चाहिए। तो दिस इज द कॉज ऑफ पीपीएच इन प्लेसेंटा प्रीविया। तो आपको एक बात समझ में आई कि यहाँ क्या है, एपीएच और पीपीएच दोनों को रिलेटेड है, क्योंकि मैंने रीजन बता दिया। Large surface area of the placenta with atonic uterus, then associated with morbidity, adherent placenta हो सकता है उसके साथ, trauma to the cervix and LUS, death is due to the massive hemorrhage. डेथ रेयर होती है, बट होता है कि वो जो सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया वगैरह होते हैं उसमें ज्यादा दिक्कत रहती है क्योंकि पीपीएच में चले जाते हैं। ड्यूरिंग पुर्पेरियम सेप्सिस है, सब इन्वॉल्यूशन है, एम्बोलिज्म है, ये सारे रीजंस, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया। अब देखो ये क्या है, लेबर इन द वुमेन विद प्लेसेंटा प्रीविया कॉम्प्लिकेटेड विद प्रोलैप्स ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड फुटलिंग। देखो ये दिख रहा है, प्लेसेंटा बाहर आ गया, अभी कितना रिस्क है, कॉर्ड कंप्रेशन होगा, बेबी कॉम्प्रोमाइज होगा। जबकि नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, पहले बेबी आराम से बाहर आ जाता है, फिर कॉर्ड और फिर प्लेसेंटा। तो बेबी की जो ब्लड सप्लाई है सब कुछ तो अम्बिलिकल कॉर्ड से, तो बेबी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। फीटल कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। अब हमने मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस पढ़ी, अब वो फीटस को क्या अफेक्ट करेगा, लो बर्थ वेट होगा, आईयूजीआर, एस्फिक्सिया, आईयूडीज, देन बर्थ इंजरीज हैं, कंजेनाइटल, क्या ब्लीडिंग हो रही है। अब हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं यार ब्लीडिंग ना हो, यहाँ देख रहे हैं वहाँ देख रहे हैं, उस
कारण भी बहुत सारी बर्थ इंजरीज हो जाती हैं। कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस भी एसोसिएटेड हो सकती हैं इससे। मैटरनल एंड फीटल मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी, क्योंकि नॉर्मल से हटके तो मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी बढ़ जाती है। अब मैनेजमेंट क्या है इसका, फिर रेगुलर विजिट कराओ, पेशेंट्स को समझाओ ताकि वो रेगुलर आए, फिर उसमें तुम टाइम टाइम पे अल्ट्रासाउंड कराओ, चेकअप करो ताकि पता चल जाए टाइम से। सिग्निफिकेंस ऑफ वार्निंग हैमरेज, तुम बता भी सकते हो ना पेशेंट को कि भाई ऐसे कभी भी वार्निंग हैमरेज हो सकता है तो यू शुड बी केयरफुल। कलर डॉपलर करा सकते हो फीटल स्टेटस के लिए। एमआरआई का रोल मैंने आपको बता दिया उस केस में कि एमआरआई का क्या रोल है, ठीक है। अब देखो इन्होंने उसी का वो बताया है जो मैंने अभी तक सब समझाया है ना, उसी का एक फ्लो चार्ट बना दिया है। तो ऑल पीपीएच पेशेंट शुड बी एडमिटेड, इनके हिसाब से हम मतलब कि ऑल पीपीएच शुड बी एडमिटेड, कि नहीं पता ना कंप्लीट कर जाए। तो हमने सारी इन्वेस्टिगेशंस करा ली, ब्लड अरेंज कर लिया, ठीक है, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट रख दिया, यदि पेशेंट कंफर्टेबल है तो एक्टिव मैनेजमेंट कर दिया, दिख रहा है कि कुछ नहीं हो सकता इस पेशेंट का, तो डिलीवर करेगी या फिर डिस्ट्रेस होगा या फिर सेक्शन करना पड़ेगा डिलीवरी, तो दैट इज एक्टिव मैनेजमेंट। अल्ट्रासाउंड एविडेंस जो होगी उनके साथ उसको कोरिलेट कर लेंगे। और फिर जैसे अब इन्होंने क्या बताया, जैसे कि प्लेसेंटल एज जो है वो 2 to 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इंटरनल सर्वाइकल ऑफ, मतलब टाइप 1 है। तो हमने क्या करा, हम लेबर व्हेन लेबर ट्रायल ऑफ लेबर इज डिसाइडेड, इंटरनल एग्जामिनेशन इन ओटी, डबल सेटअप एग्जामिनेशन किया, वहां पे तुमने जैसे जैसे डायलिटेशन हुआ उस हिसाब से एआरएम किया, ऑक्सीटोसिन लगाया, प्रोग्रेसिवली हो गई तो ठीक है, नहीं किया तो सेक्शन कर दिया। अब जो है most women with low lying placenta are also delivered by section and mainly in the higher degrees. Placenta edges within 2 centimeter, no internal examination and cesarean section will be done. ठीक है, placental edge within 2 centimeter, सेंट्रल वाले में हम सेक्शन ही प्लान करते हैं। हो गया क्या? What's नहीं हुआ? पंखा बंद कर देना थोड़ी देर बैठे बैठे, आप लेट जाओ ना आयुष्मान, बोर तो नहीं हो रहे आप हैं? लेट जाओ थोड़ी देर, अच्छा लगेगा बेटा, बिल्कुल साफ है वो बेडशीट। पानी पी ले बेटा। अच्छा हमने वैसे सीधा सीधा भी पढ़ सकते हैं, मुझे मजा नहीं आता ऐसे मतलब बिल्कुल इन्वॉल्व होके पढ़ो ना। हाँ और मुझे भी मजा आता है फिर, जैसे सीधा सीधा पढ़ते जाओ तो वो तो नींद आएगी। हाँ उसमें नहीं मजा आता, एक्सप्लेन करके पढ़ा अच्छा लगता है। तुम कहाँ से हो बिट्टू? शुरू कर दे बिट्टू। Now we come practical approach to the lower segment section for placenta previa. देखो हमें क्या करना है, हम प्लेसेंटा प्रीविया जो है उसके लिए हम सोच रहे हैं हमें अब सिजेरियन सेक्शन लेना है। तो हमें क्या करना है, टू मेक इंफ्रा अम्बिलिकल लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन, ये इसलिए बोला जाता है ताकि तुम्हें मतलब हिस्टेरेक्टमी करनी पड़े या प्लेसेंटा क्रीटा फेस करना पड़े तो तुम्हें स्पेस अच्छे से मिले। To tackle the engorged vessels, this is the main reason, क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी में ही जब हम एलयूएस से फेस करते हैं ना तो जहाँ पे निक देना होता है वहाँ इतना एंगॉर्ज्ड होते हैं साइनसेस की, इतनी ब्लड वेसल्स थिक होती हैं, साइनसेस होते हैं कि विल गेट अफ्रेड टू सी कि भी यार इसमें ब्लीडिंग कितनी ज्यादा हो रही है। तो इसलिए हम लोग टैकल मतलब इट्स नॉट इजी टू टैकल द सेक्शन of pregnant patient because engorged sinuses they look so scary to tackle the placenta during lying underneath the incision, और वो भी तुम्हारा प्लेसेंटा पड़ा हुआ है। aggressive use of oxytocin to control the bleeding, ठीक है। तो हमारे को अच्छे से ऑक्सीटोसिन यूज करने हैं, टाइट पैक यूज करना है, ठीक है, टाइट इंट्रा यूट्राइन पैक ताकि वो एटोनिक यूट्रस में न जाए, या बीलिंग सूचर्स लगाने। बीलिंग सूचर्स क्या होते हैं,
ऐसी सूचर्स होते हैं, आगे से एक तरह से पीछे जाते हैं यूट्रस के। तो तुमने क्या करा है, वो यूट्रस को कंप्रेस कर दिया है, दैट इज द ब्लीडिंग सूचर। इस्थमिक सर्वाइकल अपोजिशन सूचर, इस्थमस है और सर्विक्स है, तो हम उनको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। हमारा मेन फंडा क्या है कि हम किसी तरह से यूट्रस को कंप्रेस करते हैं, जो एटोनिक यूट्रस है, समझ आई। बेबीज ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल इज टू बी चेक्ड एट द बर्थ। भाई हमारे को पता है कि ब्लड लॉस हुआ होगा, मदर को हुआ है तो बच्चा भी इफेक्ट होगा ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि बेबी का ब्लड ग्रुप भी करवा लो, उसका हीमोग्लोबिन स्टेटस देख लो, पता चल जाए कि बेबी का क्या स्टेटस है। अब क्या है, प्रैक्टिकल गाइड टू लोअर सेगमेंट अप्रोच फॉर प्लेसेंटा प्रीविया एक्रीटा। एक्रीटा एक होता है, एक्रीटा एक होता है परक्रीटा। एक्रीटा मतलब है कि अंदर घुसा है मायोमेट्रियम में, पर होता है बाहर निकल गया है, पूरा इन्वेट कर लिया उसने, ठीक है। तो वुमेन विद एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया इम्प्लांटेड एट द साइट ऑफ प्रायर हिस्टेरोटमी और सी सेक्शन, देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ प्लेसेंटा एक्रीटा। जब पहले एडिशंस होते हैं ना, स्कार होता है, वहां पे चांसेस ज्यादा होते हैं, प्राइमरी में कम होगा ये रिस्क। इंसिजन इज मेड अवे फ्रॉम द प्लेसेंटा, delivering the baby without placental separation. In cases of morbid adherent placenta without bleeding placenta left in situ, मतलब कि हमने क्या करा कि भी बहुत बुरी तरह से अटैच है मान लो प्लेसेंटा, तो हम उसको ऐसे छोड़ देते हैं इन यूट्रो, हम नहीं निकालते उसको यदि वो ब्लीड नहीं कर रहा है, यदि वो ब्लीड नहीं कर रहा है तो। if bleeding is present then hysterectomy should be done। अब मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच, इसमें हमारे को मेडिसिन वाला भी चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और वो सब पैरामीटर्स देखने के लिए, हमें एनेस्थीसिया वाला भी अच्छा चाहिए, ठीक है, और हमें सर्जन की भी जरूरत लग सकती है, ठीक है। तो ब्लीडिंग यदि प्रेजेंट है और जो प्लेसेंटा है वो एक्रीटा है और नहीं सेपरेट हो रहा है, तो हमें हिस्टेरेक्टमी भी करनी पड़ सकती है टू सेव द पेशेंट्स लाइफ। अब क्या है एब्रप्शो प्लेसेंटा। एब्रप्शो प्लेसेंटा में क्या होता है भाई, एक्सीडेंटल हेमरेज है, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा। It is one form of antepartum hemorrhage where the bleeding occurs due to premature separation of normally situated placenta, ठीक है। तो एब्रप्शो में क्या हुआ, प्लेसेंटा अपनी नॉर्मल जगह पर है पर वहीं पे वो ब्लीड कर रहा है ना। तो इसकी वैरायटीज होती है रिवील्ड, कंसील्ड या मिक्स। मतलब रिवील्ड का मतलब है कि ब्लड दिख रहा है बाहर आता हुआ, कंसील्ड मतलब अंदर छुपा हुआ है, और मिक्स मतलब दोनों की वैरायटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एब्रप्शो। ये मैंने आपको बता दिया है कि रिवील्ड मतलब कि following separation of placenta the blood insinuates downward between the membranes and the deciduous, blood comes out and seen visibly, this is most common type। concealed में क्या होगा, तो इसको हम किसकी dd हुई, इसकी प्लेसेंटा प्रीविया की। concealed में क्या हुआ, blood collects behind the separated placenta, collected in between the membranes and deciduous, blood is prevented from coming out, blood is not visible outside। तो जो ब्लड है ना वो हमें दिखेगा नहीं बाहर आता हुआ, पर अंदर कलेक्शन हो गया है, दैट इज कंसील्ड। ये ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि पेशेंट का पता ही नहीं चलता, पेशेंट हमारे को बहुत पेल दिखेगी, सारा टेंडर है, यूट्रस पेन्स आ रहे हैं, बट वी आर नॉट एबल टू सी एनी ब्लीडिंग। क्या करें, अब हम क्या करेंगे, बीपी मेजर करेंगे, सोनोग्राफी कराएंगे, चीजों को कोरिलेट करेंगे हिस्ट्री को, तब हम समझ पाएंगे यार यहाँ अंदर कुछ ब्लीडिंग है, तो हमें सोनोग्राफी वगैरह एमआरआई वगैरह सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मिक्स में क्या होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन। अब आप ये देखो वेराइटीज ऑफ एब्रप्शो प्लेसेंटा, कंसील्ड है ये, है ना, कंसील्ड है, पीछे क्लॉट दिख रहा है, रिवील्ड मतलब देखो बाहर आ रहा है, और मार्जिनल मतलब मार्जिन पे है जरा सा, और प्री प्लेसेंटल मतलब प्लेसेंटा के पास है, ठीक है। अब आता है इसकी पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस क्या है, प्रीमेच्योर प्लेसेंटल सेपरेशन इज इनिशिएटेड बाय हेमरेज इनटू डेसिडुअस बेसिलस, ठीक है। तो प्रीमेच्योर प्लेसेंटल सेपरेशन इज इनिशिएटेड बाय हेमरेज इनटू द डेसिडुअस बेसिलस व्हेन द मेजर स्पाइनल आर्टरी रप्चर्स, then the major spiral arteries rupture, big hematoma is formed, थ्रोम्बिन हुआ, थ्रोम्बिन ने कोगुलेशन किया, है ना, और फिर वही अपना जो रिएक्शन होती है ना कि भाई मेटालोप्रोटीनेज आ गए, फिर इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स आ गए, कोगुलेशन कैस्केड जो होता है वो बन गया,
bleeding, coagulation, फिर bleeding, फिर coagulation चलता रहेगा. The decidual hematoma will be small या self-limited. The entity is evident only after the expulsion of the placenta. तभी तुम्हें दिखेगा placenta के पीछे ये इतना बड़ा retroplacental hematoma था. ठीक है, ये देखो जरा, ये होता है appearance of a placenta following delivery, है ना. तो ये कौन सा वाला placenta है तुम्हारा, ये abruptio वाला, क्योंकि ये देखो क्लॉट्स दिख रहे हैं, और ये डिप्रेशन है बिकॉज ऑफ द क्लॉट्स. इटियोलॉजी ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन, तो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, देखो हाई बर्थ ऑर्डर प्रेगनेंसीज, ठीक है, जितना मल्टी होगी, एडवांसिंग एज, स्मोकिंग, पीआईएच, ट्रॉमा, सडन यूट्राइन कंप्रेशन डिकम्प्रेशन. सडन यूट्राइन डिकम्प्रेशन कब करते हैं पता है, जैसे कि ट्विंस है, तुमने एक बेबी की डिलीवरी कर दी तो झट से बेबी बाहर आ गया, ठीक है, तो ये होता है सडन. उसमें जो सेकंड बेबी होगा ना, उसमें एब्रप्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे. शॉर्ट कॉर्ड है, सो तो उसमें एकदम से खिंचाव आ रहा है तो रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट बन गया. सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम है, ठीक है, जब पेशेंट सीधा लेटती है ना, कंप्रेशन होता है, आईवीसी होता है प्रेग्नेंट लेडी में, दैट इज सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम. देन प्लेसेंटल एनोमली है, सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा है. देन सिक प्लेसेंटा, सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा जो होगा ना वो एसोसिएटेड रहता है एब्रप्शन से, जबकि जो बिग प्लेसेंटा था, सक्सेंचुएटेड लोब था, वो किससे अटैच था, वो था प्लेसेंटा प्रीविया में, क्योंकि जिसको लार्ज सरफेस एरिया चाहिए था. अब देखो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से रिलेटेड है, क्योंकि जो पीपीएच के पेशेंट्स हैं, जो पीआईएच के होते हैं, यदि हमने देखा है उनको फॉलिक एसिड, कैल्शियम सब एंटीनेटल में अच्छे से दो ना, तो इंसिडेंस कम हो जाता है. ठीक है, अब टॉर्जन ऑफ द यूट्रस है, टॉर्जन हो गया तो उससे क्या हुआ, नॉर्मली जो लोकेलाइट वो था प्लेसेंटा वो सेपरेट हो गया. ओकेन से भी होता है, थ्रोम्बोफिलियाज में हो सकता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में तो कहीं भी हो सकता है. प्रायर एब्रप्शन, पहले यदि पीआईएच इस तरह का है और पहले भी हिस्ट्री थी एब्रप्शन प्लेसेंटा की, तो रिपीट भी हो सकता है. नाउ कम्स क्लिनिकल क्लासिफिकेशन. तो ये क्या होता है, ग्रेड 0 क्लिनिकल फीचर्स में भी एब्सेंट. ये हमारा है एब्रप्शन का क्लासिफिकेशन. Clinical features may be absent. The diagnosis is made after inspection of the placenta following delivery. कुछ नहीं था, साइलेंट था APH because of the abruptio, और बस डायग्नोस हमने देखा तो हमें लगा थोड़ा बहुत प्लेसेंटा रेट्रोप्लेसेंटा क्लॉट्स है, बीपी थोड़ा बड़ा हुआ है, दैट्स इट. ग्रेड 1 जो 40% में होता है, ग्रेड 2 जो 45 में होता है, और ग्रेड 3 की इंसिडेंस 15% है. ठीक है, अब ग्रेड 1 जो है उसमें ब्लीडिंग होगी, यूट्रस थोड़ा इरिटेबल होगा, टेंडरनेस भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती. बीपी फाइब्रोजन लेवल आर अनअफेक्टेड एंड एफएचएस इज गुड, मतलब सब बढ़िया है. ग्रेड 2 में क्या है, ब्लीडिंग माइल्ड टू मॉडरेट है ना, माइल्ड टू मॉडरेट है. यूट्राइन टेंडरनेस इज ऑलवेज प्रेजेंट, मैटरनल पल्स इंक्रीजेस, ब्लीडिंग हो रही है ना, तो टैकीकार्डिया है. बीपी कम हो रहा है, बीपी ज्यादा है या मेंटेन्ड है. ठीक है, पीआईएच की वजह से फाइब्रोजन लेवल में भी डिक्रीज्ड and the shock is absent and the fetal distress or even fetal death occurs. मतलब कि सब चीजें रिस्क पर है. ग्रेड 3 में क्या होगा, ब्लीडिंग इज मॉडरेट टू सीवियर और मे बी कंसील्ड, यूट्राइन टेंडरनेस इज मार्क्ड, सब कुछ बहुत एनहेंस हो जाएगा. आईयूडी हो गया, कोगुलेशन फेलियर होगा, एनियूरिया हो गया, मतलब पेशेंट डीआईसी में चला गया. ठीक है, थक गए पढ़ के. हाँ, वो बच्ची ने बनाया भी इतना लंबा है, कल तो छोटे छोटे थे. इसमें क्या नाटक है, इसमें ना टोटल 180 मिनट की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए. चाहे तुम एक टॉपिक पे पढ़ो, चाहे 2 टॉपिक पढ़ो, चाहे 4 पढ़ो, तो उस बच्ची ने शायद उसी हिसाब से बना दिया होगा, है ना. हो गए, कहाँ लिखा है? अच्छा, हाँ ठीक है. हाँ तो कोई बात नहीं, आज इतना कर लेंगे. अभी तो टाइम भी हो गया, चल देगा. टाइम बता, हुआ है ना, हम लिख लेंगे 12:30. लिख ले, बाहर से ग्राउंड लगा लेना, जाना होता है. बोल के थक गई है. हाँ सारा कुछ है. बैठ आराम से बैठ. ठीक है.
शुरू करो। बेटा पापा के पास तो नहीं जाना है? टेबल से चल गया। अच्छा, अब हम आते हैं क्लिनिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, ठीक है। ग्रेड 0, 1, 2 एंड 3, मतलब कि सबसे जो रिस्की है वो है ग्रेड 3। fetal death is the rule and associated मतलब कि cognition defect या एंगोरिया में कॉम्प्लिकेट, ठीक है। अब हमारा आता है क्लिनिकल फीचर्स। तो रिवील्ड और मिक्स में या फिर कंसील्ड फीचर्स प्रीडोमिनेट, मतलब जो मिक्स होती है ना वैरायटी, उसमें कंसील्ड वाले फीचर ज्यादा होते हैं। रिवील्ड में क्या होगा, देखो सिम्टम्स में एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट थोड़ा होगा, पेन फॉलोड बाय विजिनल ब्लीडिंग, और उसमें तो मिक्स में क्या होगा, एक्यूट एब्डोमिनल पेन होगा बहुत ज्यादा, ठीक है, फॉलोड बाय स्लाइट विजिनल ब्लीडिंग। स्लाइट क्यों कहा इन्होंने, क्योंकि कंसील्ड पार्ट ज्यादा है, ठीक है। कैरेक्टर ऑफ ब्लीडिंग कंटिन्यूस डार्क कलर ब्लीडिंग होती है, जबकि मिक्स में क्या होता है, कंटिन्यूस होगी, डार्क कलर होगी और ब्लड स्टेन सीरस डिस्चार्ज होगा। क्योंकि मतलब कहने का है कि रिवील में तो सब कुछ दिख ही रहा है ना, मिक्स में जो होगा वो कंसील पार्ट जाता है, तो वो ज्यादा वरी समय हमें पता नहीं चल रहा कितना ब्लड लॉस हो चुका है पेशेंट को। जनरल कंडीशन क्या है, ये प्रोपोर्शनेट होगी, जितना ब्लड लॉस दिख रहा है ना उतना ही पेशेंट का लगेगा कि हाँ गड़बड़ है। बट ये वाला ज्यादा परेशान करेगा, इसमें दिखेगा ब्लीडिंग तो इतनी सी हो रही है पर पेशेंट तो शॉक में जा रही है, ठीक है। तो पैलर क्या होगा, पैलर जितना ब्लड लॉस हुआ है रिवील्ड में उतना ही पैलर दिखेगा, इसमें तो बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगा। फीचर्स ऑफ प्री-एक्लेम्पसिया क्या होंगे, मे बी एब्सेंट इसमें रिवील्ड में, ठीक है। तो एक्लेम्पसिया नहीं होगा इतना ज्यादा, मिक्स में ज्यादा चांसेस है झटके आने के, है ना। अच्छा, यूट्राइन हाइट क्या होगी, उसमें तो प्रोपोर्शनेट रहेगी क्योंकि बाहर निकल रहा है ना। इसमें क्या, यूट्राइन फील कैसी होगी, नॉर्मल फील विद लोकलाइज्ड टेंडरनेस, कंट्रैक्शन फ्रीक्वेंट एंड लोकल एम्पलीट्यूड, मतलब कि यूट्राइन जो फील है ना वो थोड़ा नॉर्मली रहेगी, जबकि इसमें बहुत टेंस टेंडर रिजिड रहेगा। फीटल पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली, है ना, और उसमें डिफिकल्ट टू मेक आउट मिक्स वाले में, क्योंकि अंदर हेमेटोमा है तो फीटल पार्ट्स तो फील ही नहीं कर पा रहे हो आप। एफएचएस कैसे होगा, यूजुअली प्रेजेंट, और इधर क्या होगा, एब्सेंट। क्योंकि फीटल डेथ मतलब हो ही जाती है बहुत सारे केसेस में। यूरिन आउटपुट नॉर्मल है जबकि उसमें डिक्रीज है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एनुरिया रीनल को अफेक्ट कर रहा है। जितना ब्लड लॉस ज्यादा होगा डीआईसी की साइकिल बन जाएगी। अब हमारा लैब टेस्ट है, जैसे भी हीमोग्लोबिन, ऑब्वियस सी बात है रिव्यू में फिर भी ठीक ठाक रहेगा हीमोग्लोबिन, जबकि जब मिक्स है ना उसमें बहुत कम आएगा हीमोग्लोबिन, 4 ग्राम है, 5 ग्राम है, पेशेंट दिख रही है पेल शॉक्ड एकदम। कॉग्निशन प्रोफाइल उसमें सही रहेगा, इसमें सब गड़बड़ हो जाएगा। क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, फाइब्रोजन लेवल लो हो जाएगा, प्लेटलेट काउंट हो जाएगी, इंक्रीज पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, इंक्रीज एफडीपी, डी डाइमर, सब मतलब वही है चल रहा है। यूरिन फॉर प्रोटीन मे बी एब्सेंट, है ना, यूजुअली प्रेजेंट। कंफ्यूजन इन डायग्नोसिस क्या है, तो with the placenta previa as such general examination is withheld unless certain in the diagnosis and with acute ops and gynecological certifications। इन्होंने बताया कि भाई क्या कंफ्यूजन है। अब इधर तो प्लेसेंटा प्रीविया है ही मेन टीईटी, रिवील्ड में कंसील्ड में तुम्हारी क्या होता है कि जैसे ओवेरियन ट्यूमर है या भाई फाइब्रॉइड है, पता नहीं क्या रीजन है पेट में दर्द का, या अदर सर्जिकल कॉजेज है, अपेंडिक्स है, वो भी हो सकता है। ये इंटरेस्टिंग सी चीज है, इसको बोलते हैं कोवेलियर यूट्रस, कोवेलियर यूट्रस, यूट्रोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी। ये क्या होता है, ये टर्म है जो तुम्हें पता होना चाहिए, एग्जाम में टीचर्स में पूछ लेते हैं, वाइवा में भी। तो ये सीवियर फॉर्म ऑफ कंसील्ड एब्रप्शन प्लेसेंटा से जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम है। यूट्रस बिल्कुल नीला दिखाई देता है एकदम, क्योंकि ना जो ब्लड होता है ना वो पूरा एक तरह से मायोट्यूब में इन्वेड कर देता है, ठीक है। Massive intravasation of blood into the uterine musculature up to the serosal coat, तभी तो दिखाई देगा बाहर से बिल्कुल नीला है, सिरोसा बाहर ही तो होता है, ठीक है। डायग्नोज ऑन लेप्रोटमी, हमने खोला निक दिया, बिल्कुल ब्लू यूट्रस पड़ा हुआ है,
Naked eye features, uterus is dark pot wine color which may be patchy or diffuse. और तुम्हें लगेगा कहीं पे नीले पैच है, कहीं लगेगा एक जैसा नीला है. It tends to occur occasionally on the cornea before spreading to other areas, more specifically over placental site. ठीक है. और सब peritoneal petechial hemorrhage are found under the uterine peritoneum. छोटी छोटी hemorrhage भी दिख सकते हैं. अब क्या है माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस क्या होगी. यूट्राइन मसल्स ओवर अफेक्टेड एरियाज आर नेक्रोज्ड एंड देयर इज इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड इन बिटवीन द मसल बंडल्स. ठीक है. तो आर अफेक्टेड एरिया नेक्रोसिस हो गई मसल्स की और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड एंड फ्लूइड्स हो गया. मोस्ट वास्कुलर डिसोसिएशन अकर इन मिडल एंड आउटर मसल लेयर्स. ठीक है. अच्छा, presence of cover uterus as observed during cesarean is not an indication for hysterectomy. ये बहुत 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 important है, हर बार पूछा जाता है. cover uterus है तो is it an indication for hysterectomy? No, the answer is no. ये अपने आप रिजॉल्व हो जाता है. जब डिलीवरी होगी बीपी कंट्रोल होगा, अपने आप से बीपी कंट्रोल हो जाएगा और ये रिजॉल्व हो जाती है, प्रॉब्लम सही हो जाता है. ठीक है. Of vaginal delivery is favored in cases with limited abruptio placenta or FHS is good. जहाँ conditions favorable है वहाँ तुम नॉर्मल के लिए कोशिश करोगे. हार्ड एंड फास्ट कहीं नहीं लिखा हुआ कि तुम सीधा सेक्शन में. ठीक है. फैसिलिटीज फॉर कंटिन्यूअस फीटल मॉनिटरिंग. प्रोस्पेक्ट ऑफ vaginal delivery is soon. ठीक है. और vaginal abruption with a dead fetus. तो इन केसेस में हम वेजाइनल डिलीवरी को वो करेंगे ना कि भाई जब तुम्हारे को लग रहा है कि डेड फिटस है तो ऑब्वियसली यू विल नॉट डू सेक्शन अननेसेसरी until unless it is necessary or mandatory to save the life of the patient. ठीक है. अब क्या है एडवांटेजेस ऑफ एम्नियोटॉमी. एम्नियोटॉमी क्या होता है. इनिशिएट्स a myometrial contraction and labor process expedites the delivery. मतलब कि यदि हमने एम्नियोटॉमी कर दी ना उससे लेबर का प्रोसेस फास्टर हो जाता है. बेटर कंप्रेशन ऑफ स्पाइरल आर्टरी टू अरेस्ट द हेमरेज एंड रिड्यूस द एंट्री ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन. तो उससे क्या होगा डीआईसी कम हो जाएगा एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ रीनल कॉर्टिकल नेक्रोसिस एंड डीआईसी. ठीक है. तो एम्नियोटॉमी का फायदा ये है कि एक तरह से हम ना क्या कर रहे हैं इंडक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द लेबर कर. ठीक है. क्योंकि एम्नियोटॉमी से होते ही वो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं फिर वो सारे में काम करते हैं. पेशेंट नॉट इन लेबर, ब्लीडिंग कंटिन्यूज, ग्रेड 1 एब्रप्शन, इंडक्शन ऑफ लेबर, लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ऑक्सीटोसिन है. लेबर यूजुअली स्टार्ट्स सून इन मेजॉरिटी एंड डिलीवरी अकर्स कंप्लीटली एंड सेक्शन इज अनदर ऑप्शन. So what are the complications? Revealed है तो blood loss होगा, मदर की डेथ होने के चांसेस है ना यदि बहुत ज्यादा होगा तो. कंसील्ड में तो सारा ही और ज्यादा एक्सेलरेट हो जाता है. अंदर इतना ब्लड लॉस हुआ पड़ा है वो चली शॉक में चली जाएगी. हेमरेज है, कोगुलेशन डिसऑर्डर है, यूरिया ओलिगोरिया, पीपीएच सब तो हो रहा है. पी सेप्सिस हो रहा है. फीटल में क्या होगा. रिवील्ड है, कंसील्ड है. रिवील्ड में फीटल डेथ 25 to 30% है और कंसील्ड में फीटल डेथ 50 to 100% ड्यू टू prematurity and anorexia due to the placental separation. So this is important that fetal death क्यों हो रही है revealed में और concealed में, क्योंकि prematurity है and anorexia है main reason. ठीक है. अभी क्या बता रहे हैं. पेशेंट नॉट इन लेबर. अब यदि कोई लेबर में नहीं है, ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है, ग्रेड 1 एब्रप्शन है, इंडक्शन ऑफ लेबर करोगे करेंगे. बाय लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स ऑक्सीटोसिन दे दिया और यूजुअली लेबर जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है 4 to 6 आवर्स में और सिजेरियन सेक्शन हमें करना पड़ता है उन केसेस में जिनमें फीटल कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो, क्योंकि फीटस की हार्ट रेट डाउन हो रही है, हमारे पास टाइम नहीं डिलीवरी कराने का, क्योंकि डायलिटेशन इफेसमेंट फेवरेबल नहीं है, बिशप स्कोर अच्छा नहीं है, तो उन केस में हम सीधा सी सेक्शन करते हैं. देखो अब इन्होंने इंडिकेशन बताए सी सेक्शन के. सीवियर होगी वो सिचुएशन तो हम करेंगे ना,
बेबी को मैनेज करने के लिए, बस वही है। एम्ब्रियोटमी शुड कुड नॉट बी डन, ठीक है। अनफेवरेबल सर्विक्स है, हमने नहीं कर पाया एम्ब्रियोटमी, हम सीधा सेक्शन पे चले गए। प्रोस्पेक्ट ऑफ इमीडिएट वेजाइनल डिलीवरी इन डेस्परेट एम्ब्रियोटमी इज रिमूव्ड। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं सकती उसकी, एम्ब्रियोटमी फेल हो गई या की नहीं जा सकती, और एम्ब्रियोटमी फेल टू अरेस्ट द प्रोसेस ऑफ एब्रप्शन राइजिंग फंडल हाइट। मतलब कि हमने एम्ब्रियोटमी की थी ये सोच के कि शायद एब्रप्शन कम हो जाए, पर वो नहीं हो रहा, तो भी हम ये कर सकते हैं सेक्शन। अपीयरेंस ऑफ एडवर्स फीचर्स लाइक फीटल डिस्ट्रेस, फॉलिक फाइब्रोलोजन एंड ओलाइगोमेरिया, ठीक है। अब हमारा क्या आता है कॉम्प्लिकेशन, तो मैटरनल एंड फीटल। मैटरनल में क्या आता है, रिवील्ड में विजिबल ब्लड लॉस है, मैटरनल डेथ है। कंसील में क्या आएगा, शॉक, ब्लड कोगुलेशन, ओलाइगोरिया, एन्यूरिया, पीपीएच, बिल्कुल सेप्सिस। फीटल में क्या आएगा, फीटल डेथ। कंसील्ड में ड्यू टू प्रीमेच्योरिटी एंड एनॉक्सिया ड्यू टू द प्लेसेंटल सेपरेशन, ठीक है। अब क्या है मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, तो hypovolemia should be corrected easily. Blood pressure may not be a correct guide to assess the shock, as it may be high due to the severe degree of vasospasm. तो ब्लड प्रेशर नॉट भी करेक्ट गाइड है। आपको लगे कि भाई नहीं यार ब्लड प्रेशर पे विश्वास करता हूँ, सीवियरिटी पता चलेगी, नहीं, उससे नहीं पता चलती है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा वासोस्पैज्म हो रहा है, उसका ब्लड प्रेशर वैसे ही बहुत शूट कर रहा हो। Best guide to monitor the patient is the use of the CVEP, which is maintained at 10 centimeter of water. वो exact बताता है कि वाकई कितना प्रेशर है। Hematocrit should be at least 30% and urine output should be at least 30 ml per hour. ये important है, patient की monitoring के लिए important है ये। अच्छा, अब हमारा आता है hypovolemia should be corrected, BP should be maintained, ठीक है। अच्छा, और ये हमारा सीवीपी हो गया, और हमारा हो गया हेमेटोक्रिट शुड बी एटलीस्ट 30%, और यूरिन आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 ml पर आवर होना चाहिए। अब है इनडिटर्मिनेट ब्लीडिंग, जिसका कोई लॉजिक नहीं है ना। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली, एंड द रप्चर ऑफ वासा प्रीविया, जो नीचे वेसल्स होती है, मार्जिनल साइनस हेमरेज, छोटी छोटी साइनस है, देन सर्कमवेलेट प्लेसेंटा है, marked decibel reaction on endocervix, or excessive show may be possible cause of such bleeding. तो ये जो होते हैं ना, वासा प्रीविया, मार्जिनल साइनसेस होते हैं, सर्कमवेलेट प्लेसेंटा है, ये सारे रीजंस हो सकते हैं कि भाई इंटरमिटेंट ब्लीडिंग हो जाए, ठीक है। वासा प्रीविया unsupported umbilical vessels in Vellamantous placenta lie below the presenting part and run across the cervical holes. These vessels are torn during the labor or spontaneously during the rupture of the mammals. Color Doppler used for antenatal diagnosis, है ना। fetal mortality, color Doppler से flow पता चल जाएगा ना। fetal monitoring high, fetal mortality is very high, है ना, due to the fetal exhausting factors, and diagnosis is the detection of nucleated RBCs, and that is the single alkali denaturation test and fetal hemoglobin. तुम्हें ये पता चल रहा है कि fetal hemoglobin मैटर है हमारे पास, बाहर आ रहा है, मतलब this is not good, but at least we can get the chance to for stem cell preservation and other to detect the problems, to detect the hemoglobin of the baby. Treatment depends on fetal gestational age, severity of bleeding, persistence or recurrence of bleeding. Antenatal corticosteroid should be given. So the neonatal blood transfusion may be needed. So thank you for your patience listening. I hope all the factors and the things about APH are clear to you. Thank you so much. उसने ना ये बताया था एंड मीटिंग आता है, उसको बुला ले, हंसा को फोन कर देता, ठीक है। Stop.
मत कर नहीं अभी खत्म हो गया ना टॉपिक मत कर अभी बोली क्या आ रही है उसमें एक्टिविटी आएगा कैसा लगा आपको और ज्यादा अब देखो मतलब पेशेंट बनाती है अरे मिस कॉल है क्या कहते नहीं बेटा इसका हो कल गया था, version हो गया था। बेटा देख इसका मैं इसको स्टॉप करूंगी क्लोज करना पड़ेगा हो गया बेटा वो देख ले वो लास्ट कितना बड़ा था ये पेज तो बहुत बड़ा था स्टॉप कर